ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਜੋ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਂਸ ਬੇਸਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਲੈਣੇ, ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ women like men to praise them। women ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਬੋਲੇ ਨਾ women ਬੋਲਿਆ, women ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ woman ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, woman। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ women ਹੈ, women ਵਾਦੀ ਸਿਆਰੀ ਮੰਮੀ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। women ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲੂਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹੋਵੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਨੇ MAN ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਵੂਮਨ। ਵੂਮਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਮਨ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵਿਮਨ, ਵਾਦੀ ਸਿਆਰੀ ਵੀ ਮੰਮੀ ਸਿਆਰੀ ਮੀ ਨ, ਵਿਮਨ ਵਿਮਨ ਤੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਵੂਮਨ। ਓਕੇ ਚਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਪੈਸਿਵ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਮਨ ਲਾਈਕ ਮੈਨ ਟੂ ਪ੍ਰੇਜ਼ them। ਔਰਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਔਰਤਾਂ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ them ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, them, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਮਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਵਿਮਨ ਤੇ them ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੈਸਿਵ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਵਿਮਨ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਮਨ ਲਾਈਕ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਟੂ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ। ਤੇ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਬੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ, ਟੂ ਫਸਟ ਫਾਰਮ। ਟੂ ਤੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਬੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ਡ। ਸੋ ਵਿਮਨ ਲਾਈਕ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਟੂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਏ ਲਗਾਦਾ ਤੇ ਮੈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਬਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨ ਲਿਖ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟੂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਮਨ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਇਟ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਏ ਮੈਨ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਮੇਕ ਟੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਮੇਕ ਟੀ। ਚਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸ ਸਮਝੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਟ ਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ਡ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਯੂ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਟੀ, ਕਿ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਵਰਡ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਿਵ ਬਣ ਗਿਆ ਯੂ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ਡ। ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਸਪੋਜ਼ਡ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਮੇਕ ਟੀ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਬਣੇਗਾ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅ ਪੈਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਰਾਈਟ ਵਿਦ। ਹੁਣ ਪੈਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅ ਪੈਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਰਾਈਟ ਵਿਦ, ਪੈਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹਦਾ ਪੈਸਿਵ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅ ਪੈਨ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੈਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਅ ਪੈਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ। ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਟੂ ਰਾਈਟ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਬਣ ਗਿਆ ਟੂ ਬੀ ਰਿਟਨ। ਵਿਦ ਦਾ ਵਿਦ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਅ ਪੈਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰਿਟਨ ਵਿਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, people say that honesty is the best policy, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਅਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਰੂਲਸ ਲੱਗਣੇ, ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈ ਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਲੱਗਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਫਾਈਨਲ, ਆਪਣੇ ਵੌਇਸਿਸ ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट्स आ रहे हैं कि सिलेबस कदों तक हो जाएगा जी। आप कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी थोड़े एग्जाम तो पहला सारा कुछ क्लीयर हो जाएगी। ओके, पीपल से दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हम देखो जदों भी पीपल से आ गया ना, पीपल से इसका मतलब है लोग कहते हैं कि ईमानदारी चंगी नीति है। लोग कहते हैं कि ईमानदारी चंगी नीति है, यानी कि एक कहा जाता है, ये कहा जाता है कि ईमानदारी चंगी नीति है। ये कहा जाता है, इसका पैसिव बन गया इट इज सेड। पीपल से दा पैसिव बन गया जी इट इज सेड। लोग कहते हन, ये तो हो गया एक्टिव, लोग कहते हन। पैसिव की बन गया कहा जाता है। अगे ये कहने की जरूरत नहीं भी लोगों द्वारा, अंडरस्टूड है भी कहा जाता है, लोग ही कहते होंगे। ठीक है, सो पीपल से या दे से भी आ जाता है कई बार पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ, दे से भी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ पीपल से लोग कहते हैं। इन्हों का जो पैसिव बन गया इट इज सैड। ये ध्यान रखियो, पीपल से दा पैसिव बनया इट इज सैड। बाकी अगे कुछ करने की जरूरत नहीं, दैट लगे हुआ सेम सेंटेंस लिख दो एज इट इज। ठीक है, आम तौर पर इस तरह का सेंटेंस आएगा जिथे इतने ना प्रोवर्ब होगी, कोई कहावत होगी। ठीक है, अखौत हो सकती है, अखाण हो सकती है। ठीक है, तो कोई मुहावरा हो सकता है। इन्हों का जो एज इट इज आप लिख देंगे, पीपल से दा इट इज सैड करो, दैट एवें दा एवें लग गया, बाकी इसनों एज इट इज लिख दो पूरे। ठीक है, कहावत नूं। ओके, इसका एक दूजा तरीका यह भी है, आप ये भी कह सकते हैं भी ये सारा छड्ड दो, इसकी कोई जरूरत नहीं हैगी। इस तरह जो आप पैसिव बना सकते हैं। ऑनेस्टी नूं पहले नंबर पर लिखो। ठीक है, इज है, इज लिखता, उस तो बाद ना सैड आपके को लिखना पऊगा आपां नूं। जिहड़ा इट इज सैड इत्थे लिखिया सी, ये सैड आपां फिर इत्थे लिखांगे। ऑनेस्टी इज सैड टू बी द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ईमानदारी नूं चंगी नीति कहा जाता है, ये पैसिव बन गया। ऑनेस्टी इज सैड, ईमानदारी नूं कहा जाता है कि टू बी द बेस्ट पॉलिसी, एक चंगी नीति, सब तो वधिया नीति कहा जाता है। ठीक है, सो इस तरह पैसिव बन गया। पीपल से दा इट इज सैड करके दैट बाकी सेम रख लो, जां जो ए है इत्थे सबजैक्ट है जिहड़ा उसनूं पहले ही नंबर ते रखो। उस तो बाद इज सैड, जे ये प्लूरल है तो इज सैड, जे सॉरी ये सिंगुलर है तो इज सैड, जे इत्थे प्लूरल है तो आर सैड भी हो सकता है। ठीक है, ऑनेस्टी इज सैड, फिर टू बी जो बच गया बाकी सेंटेंस लिख दो लास्ट में बस। ओके, ये दो तरीके नाल जो है इसका पैसिव पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट देखो, द रोज स्मेल्स स्वीट। द रोज स्मेल्स स्वीट। ठीक है, गुलाब की सुगंध जी है वो मधुर होंगी है। ठीक है, मिठी होंगी है। तो इसका पैसिव इन्हों असल ये जड़ियाँ वर्ब्स ने इन्हों कोसी पैसिव कहा जाता है। कोसी पैसिव ये एवें लगता है भी जिवें सेंटेंस है तो एक्टिव है, पर पैसिव वर्गी इसकी जो है सेंस बन गई एक्टिव के भी। एवें का जो सेंटेंस आ रहा है स्मैल्स वर्ब आ जाए, टेस्ट आ जाए, टेस्ट्स या स्मैल्स, उन्होंने की करना आपने जो सब्जैक्ट है सब्जैक्ट के तौर पर उत्थे रख लो। ठीक है, उस तो बाद ये देखो कि ये सिंगुलर है या प्लूरल, एस लगे है ना। सेंटेंस किहड़ा है, टेंस किहड़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये स्मैल्स, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे विच इत्थे ना एस जुड़िया होया है। ठीक है, सो इसका पैसिव बनाने लई आपां नूं रूल फॉलो करना पैना है प्रेजेंट इंडेफिनिट दा पैसिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट दे पैसिव च आपां इज, एम, आर एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, द रोज इज इत्थे लग गया, इज एम आर लगाना सी, इज लग गया क्योंकि रोज सिंगुलर सी। उस तो बाद की करना है जी, स्वीट जो वर्ड है इत्थे कोई भी वर्ड हो सकता है, स्वीट हो सकता है, बीटर हो सकता है, सोर हो सकता है, उस शब्द नूं तुसीं इत्थे लिख लो। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब लगाने तो बाद सबजैक्ट के अकॉर्डिंग लगाने, इत्थे जे सिंगुलर है तो इज लग गया हुण इत्थे। ठीक है, फिर ए वर्ड नूं इत्थे लियाओ। उस तो बाद वैन आपके को लिखना आपां ने वैन। ठीक है, वैन तो बाद इट इज लिख दोगे तो भी ठीक है, जे ना लिखोगे तो भी कोई गल नहीं। उस तो बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। स्मैल की थर्ड फॉर्म स्मैल्ट होंदा है, लास्ट वाले एल का ना टी कर दो, स्मैल्ट हो जाएगा ये। हुण सेंटेंस की बन गया, द रोज इज स्वीट वैन स्मैल्ट, यानी कि गुलाब जो है मधुर होंदा है जदों इसनूं सूंघिया जाता है, स्मैल किया जाता है जदों इसनूं, उदों ये मधुर लगता है, मिठा लगता है। ठीक है, वधिया लगता है।
ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦ ਰੋਜ਼ ਇਜ਼ ਸਵੀਟ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮੈਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ ਬਣਦਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਜ਼ ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਜ਼ ਤੇ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪੈਸਿਵ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਹੈ, ਪੈਸਿਵ ਚ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਤੇ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਜ਼ ਲੱਗੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ। ਓਕੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦ ਕੁਈਨ ਟੇਸਟ ਬਿਟਰ, ਦ ਗ੍ਰੇਪਸ ਟੇਸਟ ਸੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਪੀਕਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਗॉड। ਥੈਂਕ ਗॉड ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਿਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਗॉड ਬੀ ਥੈਂਕਡ। ਠੀਕ ਹੈ, गॉड बी थैंक, यानी कि परमात्मा का धन्यवाद किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो, मे आई गो आउट। मे आई गो आउट कि मैं बाहर जा सकता हाँ, इतने परमिशन मंगी है। ठीक है, जो इस तरह का सेंटेंस आ गया, इतने आप बनावांगे इसको, आई है, आई ते नाल की लगना एम, एम आई अलाउड टू गो आउट। ये वर्ब जी आपके कोलों आपां नूं लिखनी पैनी है, अलाउ, क्योंकि इतने परमिशन मंग रहा हो। मे आई गो आउट कि मैं बाहर जा सकता हाँ, कि मैनू पैसे की बन गया कि मैनू बाहर जाने की इजाजत है। ठीक है, एम आई अलाउड टू गो टिपिकल सेंटेंस है, इसमें याद रख लो, दिमाग च रट्टा ला लो, बस इसका पैसे एवं बनाना आपने। ठीक है जी, उस तो बाद आ गया अगला सेंटेंस, देखो, मे यू लिव लॉन्ग, परमात्मा करे तुम्हारी उम्र लंबी होवे। ठीक है, तो इतने की है सेंटेंस के विच की हुई है, प्रे की गई है, प्रार्थना की गई है। ठीक है, कि ये प्रार्थना की जाती है कि तुम्हारी उम्र लंबी हो गई, ये प्रार्थना की जाती है, इट इज प्रेड। ठीक है, मे यू, हालांकि इस कितने प्रे नहीं आया है, पर फिर भी इस सेंस को समझो, इस दसिया गया है, यही जो है विश की गई है, यही प्रे की गई है कि तुम्हारी उम्र लंबी हो गई। ठीक है, सो इस करके इस तरह के सेंटेंस आपा ने जो है इट इज प्रेड, प्रेड शब्द जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रे की, ये यूज करनी बनती है इसके। फिर उस तो बाद दैट आपके को लगाना आपने, तो बाकी जो सेंटेंस बच गया हम ध्यान रखना है, इस मे पहला है, सब्जैक्ट बाद है। जो पैसिव बनावांगे तो इधर सब्जैक्ट को पहला कर लो, तो मे नू बाद लिखना अपने, ध्यान रखना। ठीक है, दैट यू मे लिव लॉन्ग, इट इज प्रेड दैट यू मे लिव लॉन्ग, प्रार्थना की जाती है कि तुम्हारी उम्र लंबी होवे। ओके, नेक्स्ट देखो, वी होप टू सॉल्व दिस सम, असीं उम्मीद करते हैं इस सवाल को हल करने की, इस सवाल को हल करने की असीं उम्मीद करते हाँ, यानी कि उम्मीद की जाती है कि असीं इस सवाल को हल कर देवांगे, सानू ये सवाल हल कर लेना चाहिए है। ठीक है, सो वी होप का मतलब असीं उम्मीद करते हाँ, पैसिव की बन गया, इट इज होप्ड, ये उम्मीद की जाती है। ठीक है, वी होप यानी कि इट इज होप्ड, एक्टिव है भी असीं उम्मीद करते हाँ, पैसिव बन गया उम्मीद की जाती है। ठीक है, इट इज होप्ड, फिर दैट अपने को लगाना पऊगा, अपन फिल करांगे इत्थे। फिर देखो वी दा वी एज इट इज आ गया इत्थे, वी शुड सॉल्व दिस सम, सानू ये सवाल हल कर लेना चाहिए है, असीं ये उम्मीद करते हैं कि कर दांगे असीं हल इसनूं। ओके, एक टिपिकल सेंटेंस है, बिल्कुल दिमाग रखो इसनूं। उस तो बाद है गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स, गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प्स देमसेल्व्स, ये भी एक कहावत है। ठीक है, इसका मतलब की है कि परमात्मा उन्होंने की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। हुण इहदे एक देखने वाली गल है ना, दो सेंटेंस बन गए। देखो असल च सेंटेंस है गॉड हेल्प्स, एक तो बन गया, इन्ना सेंटेंस है। ठीक है, गॉड हेल्प्स प्रिंसिपल क्लॉज हो गई है। ठीक है, गॉड हेल्प्स दोज, गॉड हेल्प्स दोज, परमात्मा उन्होंने मदद करता है, किन्ना दी, इत्थों तक हो गया है, हू हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी मदद आप करते हैं। ठीक है जी, ये है एक्टिव। पैसिव में मिलेगा दोज, दोज हु आर हेल्प्ड बाय देमसेल्व्स, देखो इन्ना ही सेंटेंस है, ये पैसिव है जी, इसदा पैसिव है, हु हेल्प देमसेल्व्स, हु आर हेल्प्ड बाय देमसेल्व्स। हुण इत्थे कई बच्चे सोचणगे कि सर ने पहला दस्सिया सी हू नू बाय हूम दे विच चेंज करना है। ठीक है, दस्सिया सी ना, पर इत्थे ध्यान नाल देखो कि इत्थे हू दा मीनिंग कौन नहीं है, इत्थे क्वेश्चन पुट नहीं होया,
ਹੂ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਈ ਹੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੂ ਦਾ ਹੂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਹੂ ਹੈਲਪ ਦੈਮਸੈਲਵਸ, ਇਸ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੂ ਆਰ ਹੈਲਪਡ ਬਾਈ ਦੈਮਸੈਲਵਸ। ਹੈਲਪ ਆ ਗਿਆ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਪੈਸਿਵ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲਗਾਤੀ। ਇਜ਼ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੂਰਲ ਨੇ ਦੈਮਸੈਲਵਸ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ ਲਗਾਇਆ, ਹੂ ਆਰ ਹੈਲਪਡ ਬਾਈ ਦੈਮਸੈਲਵਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੈਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਗੋਡ ਹੈਲਪਸ ਦੋਜ਼, परमात्मा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ परमात्मा ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਆਰ ਹੈਲਪਡ ਬਾਈ ਗੋਡ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਹੈ ਗੋਡ ਹੈਲਪਸ ਦੋਜ਼। ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰੂਲ ਲੱਗਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੋਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ ਲਗਾਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲਪ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਈ ਗੋਡ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਸਿਵ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੇ। ਗੋਡ ਹੈਲਪਸ ਦੋਜ਼ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਬਣ ਗਿਆ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਹੈਲਪਡ ਬਾਈ ਗੋਡ। ਹੂ ਹੈਲਪ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੂ ਆਰ ਹੈਲਪਡ ਬਾਈ ਦੈਮਸੈਲਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਨਸ ਐਲਡਰਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸਿਵ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵਨ ਜਾਂ ਵਨਸ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ठीक है। इत्थे जो ऑब्जेक्ट है एल्डर्स है, इसको पहले नंबर पे लिख लिया, शुड बी थर्ड फॉर्म, ये दस्या होया मॉडल्स वाला वीडियोस तो पहली वीडियो जी टू इनफिनिटिव ते मॉडल्स वाली वीडियो, उस दस्या होया कोई भी मॉडल आ जाए, कैन कुड मे माइट वुड शुड मस्ट, ठीक है, आउट टू, सारियां दे नाल की है बी ते थर्ड फॉर्म लगदी है पैसिव च। एक्टिव च मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म होंदी है, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी एक्टिव च। जो पैसिव बनावांगे बी थर्ड फॉर्म लगेगी, मॉडल प्लस बी ते थर्ड फॉर्म, मॉडल की इत्थे शुड है, देखो शुड बी लगा के थर्ड फॉर्म करती, एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, शुड बी रिस्पेक्टेड, ठीक है, सॉरी शुड इत्थे एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, यानी कि वड्डियां दा आदर किया जाना चाहिए है, ये बन गया, ठीक है। हरेक नूं कोई भी व्यक्ति है उसनूं वड्डे दा आदर करना चाहिए है, पैसिव बन गया वड्डियां दा आदर किया जाना चाहिए है, हरेक द्वारा, हर बंदे द्वारा, ठीक है, वो लिखने की पीछे जरूरत नहीं हैगी, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट सेंटेंस देखो ही डिड नॉट फ्लैटर एनीबॉडी, ही डिड नॉट फ्लैटर एनीबॉडी, डिड आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, किहड़ा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया जी, ठीक है। इस दे विच डिड आया होया है, इसका मतलब की है पैसिव दे विच आपां जो है बी दी सैकंड फॉर्म यूज करांगे। बी दी सैकंड फॉर्म की होंदी है वॉज अते वर, ये बी वाला कंसैप्ट दस्सिया होया पहले एक वीडियो दे विच, उत्थे देख लो तुसीं, ठीक है। बी दी असल च 8 फॉर्म होंदियां ने, 8 फॉर्म्स ने, बी इज एम आर ये पहली 4 हो गया, वॉज वर सैकंड फॉर्म हो गया 2, ठीक है, बीन थर्ड फॉर्म है सिंगल है, ते बीइंग है आईएनजी फॉर्म जिसनूं प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह दिंदे आपां, ठीक है। हुण ते डिड लग्या है सैकंड फॉर्म है, डू डिड डन हुंदा है, ठीक है, भावें हेल्पिंग वर्ब ही है तो सैकंड फॉर्म है, तो बी दी सैकंड फॉर्म पैसिव च यानी कि वॉज वर इत्थे लगना है। देखो हुण नॉट ते एनीबॉडी, वैसे तो इत्थे जो ऑब्जेक्ट है एनीबॉडी है, ठीक है, इत्थे मैं लिख रहा नोबॉडी, नोबॉडी क्यों लिखा है ध्यान रखियो, नॉट एनीबॉडी दा मतलब है नोबॉडी, कोई नहीं, एनीबॉडी कोई हो गया, कोई, नॉट दा मतलब नहीं, कोई नहीं, इन्हां दोनों नूं जोड़ के आपां नोबॉडी लिख सकते हाँ, ठीक है, नोबॉडी हो गया है, नोबॉडी सिंगुलर है इस करके वॉज, फ्लैटर दी थर्ड फॉर्म फ्लैटर्ड, फिर बाय ही दा हिम, सिंपल, ओके। टेंस नूं जरूर पछाणो ऑब्जेक्ट नूं पछाणो,
नॉट एनीबॉडी दा नो बॉडी लिखना है, पेपर्स ध्यान रखियो, नॉट एनीबॉडी नहीं लिखांगे पैसिव च, जो भी नॉट एनीबॉडी आ गया उसको नो बॉडी कर लियो, ठीक है जी। आगे देखो, आई लिसन टू द टीचर, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई जी, आई लिसन टू द टीचर, मैं जो है अध्यापक को सुनिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म है, ओके। पैसिव भी बनेगा, देखो ऑब्जेक्ट की है द टीचर, पहले नंबर पे लिखता, उस तो बाद सेकंड फॉर्म है एक्टिव च, इसके पैसिव च वॉज वर्ब ते थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। टीचर सिंगुलर है, इस करके की लग गया वॉज, द टीचर वॉज लिसन, थर्ड फॉर्म भी लिसन दी होंदी है इसकी, लिसन। उस तो बाद टू प्रेपोजिशन एज इट इज रखनी है अपने ध्यान में, तां लिखा सेंटेंस ये दसन वास्ते कि जेकर टू आ जाए, इत्थे एट आ जाए, फोर आ जाए, आफ्टर आ जाए, इन्हां वर्ड्स नूं ड्रॉप नहीं करना, ये वर्ब दे नाल इत्थे लगे रहणगे एज इट इज, ठीक है। द टीचर वॉज लिसन टू बाय, आई दा इधर जाके बन गया जी मी, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, लास्ट इस वीडियो का सेंटेंस, आई एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क, मैं तुहाडे तो उम्मीद करदा हां, आई एक्सपेक्ट यू, मैं तुहाडे तो उम्मीद करदा हां टू कंप्लीट दिस वर्क, कि ये काम तुसीं पूरा करोगे, ठीक है। तुहाडे तो मैनूं उम्मीद है, उम्मीद करदा मैं कि ये काम पूरा हो जाऊगा तुहाडे कोलों, तुसीं कर दोगे इसनूं, ठीक है। हुण आई एक्सपेक्ट यू, मैं तुहाडे तो उम्मीद करदा हां, ये सेंटेंस असल च इसका पैसिव बनूगा, यू आपां ने पहले नंबर ते लिख लिया, ठीक है। हुण एक्सपेक्ट की है वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो फर्स्ट फॉर्म इत्थे आएगा तां पैसिव च हेल्पिंग वर्ब लगनी है इज एम आर, ये ध्यान रखियो, ठीक है। तो इत्थे आ जाएगा यू, यू नाल आर लगावांगे इज एम आर विचों आपां, एक्सपेक्ट की थर्ड फॉर्म हो गया जी एक्सपेक्टेड, यू आर एक्सपेक्टेड, तुहाडे तो उम्मीद की जाती है, मेरे द्वारा लिखने की लोड़ नहीं है, लिख ही सकते हैं, ठीक है। यू आर एक्सपेक्टेड, तुहाडे तो उम्मीद की जाती है, किसदी, टू कंप्लीट दिस वर्क, टू कंप्लीट दिस वर्क एज इट इज लिख दो, इन नेक्स्ट सेंटेंस का पैसिव बनना है ये, बाकी एज इट इज आना है, ठीक है जी। एक लास्ट सेंटेंस हो रहा है सिंपल जहा लिखा है, देखो सिट डाउन, इसका पैसिव बनता है जी बी सीटेड, याद रखियो, ठीक है, बी सीटेड। या एक होर तरीका है यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, ये सेंटेंसिस अपने रह गए, इन्होंने इंपैरेटिव सेंटेंसिस कहते हैं आपां। नैक्सट जी वीडियो है लास्ट इसे ते बेस्ड होगी, वो भी देख लेना, तो अपने पैसिव कंप्लीट, उस तो बाद नैक्सट आपां टॉपिक शुरू करांगे। हुण मैनूं दिओ इजाजत, तुसीं करो एंजॉय इस वीडियो नूं, मिलदे हां नैक्सट वीडियो दे विच। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।